हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 8 ऑफ आवर क्लाउड एंड डेवऑप्स लर्निंग सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बात करेंगे जो कि गिट है। चाहे आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, डेवलपर हो या फ्रेशर हो, गिट बिना समझे डेवऑप्स पॉसिबल ही नहीं। तो व्हाट इज गिट? गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। सिंपल वर्ड्स में, गिट हेल्प्स अस ट्रैक चेंजेस इन कोड ओवर टाइम। मतलब कौन से फाइल में क्या चेंज हुआ, किसने क्या चेंज किया, सब चेंज कैसे हुआ, ये सब का रिकॉर्ड गिट रखता है। सो व्हाई गिट इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवऑप्स? डेवऑप्स में मेन मल्टीपल डेवलपर्स का कोड होता है, जो कि फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट्स होते हैं। उसमें CI/CD पाइपलाइंस गिट से ट्रिगर होते हैं, इसलिए गिट डेवऑप्स का बैकबोन है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं हम गिट का, क्योंकि आप कौन सी खुद की वेबसाइट डिप्लॉय करते हो, बनाते हो, जो कि माई ब्लॉग है। ओके, आपका वेबसाइट का नेम है, डोमेन नेम। तो so Git is a actually amazing tool to work with, and I want to make you to fearless to a Git developer. So in this video, you will learn how to get up and running with the Git, how to use it in your daily life. For example, जो कि आपकी वेबसाइट है माई ब्लॉग करके. So let's say you are working on a building a website, and after a while you decide that the website is ready to deploy, and your deployed website is now available on your domain, and anyone on the internet can visit it on your own computer. You have a local version of that deployed website. After a while, you want to make some updates to the website. You change the background image and add a better subtitle to the landing page. So it's not ready to be deployed yet. So it's just some draft changes that still needs some other things before you actually want to deploy the updated version. Suddenly, your friend texted you saying that he spotted a typo mistake on your website in the navigation bar. The about button is spelled with a two B's instead of one. You quickly want to change it to make sure that there are no typos on the deployed website. But wait a second, we change the background image and edit a subtitle which we don't want to deploy it. So we can't update the content of the deployed website without overriding all the changes that we have just made, just made locally on. So in this case, Git can help you out. So ये इसका एग्जाम्पल है। तो फॉर एग्जाम्पल माय ब्लॉग है, इसमें है होम पेज, जो कि फ्रंट पेज है हमारा होम, जो कि अबाउट अबाउट है। तो बाय मिस्टेकली टाइपो ये क्या हुआ, अबाउट करके, तो हमें इसको चेंज करना है। तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? यूजिंग गिट करके हम इसको चेंज करेंगे, गिट टूल यूज करके। So Git is a content tracker. It store all our code changes, and it also distributed version control system. So version control system basically means that we can go back in a time and work with different version of our code base. Since Git store at all work and with branches which will be covered. So basically Git क्या है? कंटेंट ट्रैकर है और डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? इट मीन्स दैट इट हैज रिमोट रेपो which stored in a server and local repo which is stored on the computer of every developer working on the project. So every developer has access to full copy of the code base. So Git is a version control system. We can basically go back in a time without losing any new changes, and when we have made changes, we can save the current state of the website. This way, you always have all your versions stored, which makes it super easy to go back in time. You have access.
to your entire project history, the changes you made, who made changes, if you are working on the project with multiple team members, and when it was made. So Git can help us out to fix the button bug for deployed the website. Currently, we have two versions of the website, the deployed landing page and updated landing page that contains our local changes to the background image subtitle. Using a Git, we can go back in a time to that state of the deployed website without losing our new changes. We can quickly fix the button typo on deployed website without losing any of our work. Okay. After fixing the button and deploying the updated website, we can easily switch back to keep on working on our new local changes. Git has a two repository types. इसमें टू repository types हैं जो कि फर्स्ट है local repository and second one is the remote repo. Local repo क्या है basically? It's is a own machine so you have direct access to it. लोकल रेपो हमारे लोकल कंप्यूटर में होता है जो कि आप उसको उसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो बट रिमोट रेपो में क्या होता है it usually a centralized server and it's entirely optional so we can save changes that we made locally on this remote server. The remote repo is very useful when you want to have a backup of your data in case your computer breaks or when you are working with the team. The teammates can initialize their own local repo on their own computers and simply pull the data from the remote repo in order to start working on your project. When one of the team members have made some changes, they can push these changes to the remote repo in order to keep your local and remote repo in sync. You can then pull these changes from remote repo into your local repo. So a local repo actually consists of the three stages. So three stages. The first stage, थ्री स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट होता है वर्किंग एरिया. सेकंड होता है स्टेजिंग एरिया. और थर्ड होता है कमिटेड फाइल्स. कमिटेड फाइल्स. तो इस वर्किंग एरिया में क्या होता है इज इट इन योर एक्टिव चेंजेस जो कि हम आपके जो एक्टिव चेंजेस होते हैं जो वर्किंग एरिया में होते हैं मोस्टली एक्टिव चेंजेस स्टेजेस है जो वर्किंग एरिया जो हमने देखा इसमें एक्टिव चेंजेस होता है. सेकंड स्टेजिंग एरिया. जो स्टेजिंग एरिया में मोस्टली क्या होता है इट कंटेन्स a new changes that will soon be committed. ओके. जो स्टेजिंग एरिया से जाते हैं वो कमिटेड फाइल्स में जाते हैं. तो ये थर्ड टाइप है. और previously we looked at use cases of Git and we saw that people could add their changes and save new stages of the project each time. So commit क्या होता है
Commit, the people can commit their changes in order to add version control to their project. The files that should be included in the commit are first added to the staging area, and a commit gets created when developer actually commits those files. जो कि एक प्रोजेक्ट है, तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अजय है, तो अजय ने क्या कमिट किया फिक्स बटन ऑन सीएसएस, जो आपका माई ब्लॉग है, प्रोजेक्ट है, उसमें अजय ने क्या किया, फिक्स बटन ऑन बटन सीएसएस। नेक्स्ट कमेंट किया रोहित ने, चेंज द बैकग्राउंड इमेज। नेक्स्ट चेंज किया लाइक अक्षय ने एडेड सबटाइटल से मल्टीपल डेवलपर्स जो कि फ्रंट एंड में काम करते हैं, कुछ बैक एंड में काम करते हैं, कुछ डेटाबेसेस साइड देखते हैं, तो ये सब चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, जो कि गिट में हमने देखा है यूजिंग गिट करके। तो हम सब बेसिक कमांड देखेंगे गिट के। तो कमांड्स, गिट वर्जन चेक करने के लिए यूज क्या कमांड होती है, सिंपल कमांड है गिट वर्जन। सेकंड कमांड इनिशियलाइज एनी रिपोजिटरी करनी होती है, तो हम इनिट यूज करते हैं इसमें, गिट इनिट करता है रिपोजिटरी। तो ये बेसिकली कमांड फोल्डर को गिट रिपोजिटरी बना देती है। तो थर्ड कमांड क्या है, गिट स्टेटस करके, स्टेटस देख सकते हो। तो ये बेसिकली किसका स्टेटस शो करती है, जो मॉडिफाइड फाइल से, स्टेज फाइल से और अनट्रैक्ड फाइल से। ओके, नेक्स्ट कमांड है ऐड फाइल्स टू द स्टेजिंग एरिया। आपको कौन सी फाइल ऐड करनी होती है स्टेजिंग फाइल को, स्टेजिंग एरिया को, तो कमांड है git add your file name like demo.txt। ओके, और मल्टीपल फाइल्स आपको स्टेज करनी होती है, तो git add स्पेस बार डॉट, ये कमांड है। और आपको कुछ कमिट चेंजेस करने होते हैं, तो आपको यूज गिट कमिट करके कमांड है, वो चलानी होती है, गिट कमिट। बट इसमें न्यू क्या है, आपको मैसेज करके डालना होता है, लाइक ये, या कमिट में क्या फीचर है, तो आप इसको कमेंट डाल सकते हो, इनिशियल कमिट कुछ भी डाल सकते हो आप।
बट उसमें भी गुड प्रैक्टिस है और बैड प्रैक्टिस है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल्स में। वो आपको हिस्ट्री चेक करनी होती है, तो कमांड है git लॉग करके, यूजिंग दिस कमांड आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो, कमिट हिस्ट्री। सो गिट में ब्रांचिंग भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में देखेंगे हैंड्स ऑन करके। बट मैं आपको अभी बता देता हूँ ब्रांच क्या है। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच इज बेसिकली एक गिट का सबसे पावरफुल फीचर है, जो पैरेलल वर्जन ऑफ कोड होता है। इट्स मेन ब्रांच से अलग काम करने के लिए आपको ब्रांच का यूज होता है मोस्टली। सो इसमें भी सम कमांड से क्रिएट ब्रांच करके, तो आप यूज द कमांड git branch नोट स्पेस ब्रांच। फीचर फीचर वन, और से स्विच ब्रांच करनी होती तो आपको git चेकआउट करके कमांड है चेकआउट, जिस ब्रांच के ऊपर आपको स्विच करना है वो ब्रांच नेम, लाइक हमने फीचर लिया है फीचर वन, create plus switch together, then use the git checkout dash b feature dash one। मर्ज कंसेप्ट भी होता है इसमें, जो कि git merge फीचर वन। आप यूजिंग दिस कमांड आप मर्ज बेंच भी कर सकते हो। फीचर कंप्लीट होने के बाद में ब्रांच में मेन मर्ज करना होता है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि रिमोट रेपो, जो कि हम उसमें ऐड रेपो करके भी कर सकते हैं, क्योंकि तो ऐड रिमोट कैसे कर सकते हो आप? यूज द गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, जो यूआरएल है इसमें आएगा रेपो यूआरएल। पुश कोड के लिए भी कमांड है गिट पुश, इसमें करना है आपको ओरिजिन मेन में, तो आप ओरिजिन मेन भी कर सकते हो। थर्ड कमांड है पुल लेटेस्ट कोड, यूजिंग द गिट पुल कमांड। एंड क्लोन रिपोजिटरी, जो को आपका प्रोजेक्ट गिटहब पे डिप्लॉयड है, तो आपको क्लोन करना है वो रेपो, तो आप यूज गिट क्लोन कर सकते हो, गिट क्लोन रेपो यूआरएल, रेपो यूआरएल। तो नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम गिट कॉन्फ्लिक्ट्स। जब सेम फाइल के सेम लाइन को दो लोग मॉडिफाई करते हैं तो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो डेवऑप्स इंजीनियर्स को कॉन्फ्लिक्ट समझना और रिजॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैंडेटरी है, आना ही चाहिए। सो रियल डेवऑप्स फ्लो कुछ ऐसा होता है कि डेवलपर पुशेस कोड इनटू गिटहब, webhook triggers the Jenkins, then Jenkins build the application, then Docker image created, deployed to the Kubernetes. So like that everything starts from Git. So लास्ट में कंक्लूजन में आज हमने क्या देखा? So today we learn what is Git, why Git is important for DevOps, Git architecture, जो आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, what is Git, why Git is important for DevOps, basic Git commands, branching and merging, GitHub interaction। अगर गिट क्लियर है तो CI/CD भी आपको समझने समझने में आसानी होगी।
तो हम अब स्मॉल हैंड्स ऑन देखेंगे लाइक डेमो। ओके, ओके। तो हमने कौन कौन सी कमांड सीखी? बेसिक कमांड्स गिट की। गिट पहले हम चेक करेंगे इसमें गिट इंस्टॉल है क्या नहीं, गिट वर्जन करके। ओके, वर्जन गिट तो इंस्टॉल है, वर्जन 2.3.1। और नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें एक डायरेक्टरी बनाएंगे। क्या डायरेक्टरी? गिट डेमो करके। ओके, क्रिएट हुई है क्या? यस, गिट डेमो। इसके अंदर जाएंगे हम, सीडी गिट डेमो। ओके, तो इसमें हम एक फाइल बनाएंगे डेमो डॉट टेक्स्ट, टच कमांड करके, टच यूजिंग द टच कमांड, टच डेमो डॉट टीएक्सटी। ओके, फाइल क्रिएट हुई, एलएस किया। तो हम इसमें कुछ डेटा एंटर करेंगे यूजिंग इको कमांड। इको ज्ञानेश्वर मड़के, मेरा नाम डाल दिया इसमें, और फाइल नेम क्या है, डेमो डॉट टीएक्सटी। एंटर किया, कैट किया चेक करने के लिए एंटर हुआ है कि नहीं, डेमो डॉट टीएक्सटी। यस, ज्ञानेश्वर मड़के। ओके, तो हम इसमें क्या करेंगे, गिट इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग गिट इनिट कमांड। तो इनिशियलाइज द एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन। ओके, तो एलएस किया, डेमो डॉट टीएक्सटी, एलएस एको, सब एक्सेस इसको। तो हम देखेंगे कि हमने अभी एक फाइल बनाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, गिट स्टेटस देखेंगे जो कि अनट्रैक्ड फाइल है, डेमो डॉट टीएक्सटी। सो नो कमिट सेट ऑन ब्रांच मास्टर। देखो ये आउटपुट आया गिट स्टेटस करके, अनट्रैक्ड फाइल्स डेमो डॉट टीएक्सटी। अब ये डेमो डॉट टीएक्सटी कहाँ है? बेसिकली ये डेमो डॉट टीएक्सटी यहाँ पे वर्किंग एरिया में, इसमें डेमो डॉट टीएक्सटी। तो अब हमें इसको ट्रैक करना है, तो हम क्या करें, यूजिंग हमको ए फाइल स्टेजिंग एरिया को पुश करनी है। तो हम क्या करेंगे, गिट ऐड, फाइल नेम क्या है, डेमो डॉट टीएक्सटी। यस, अब देखेंगे गिट स्टेटस क्या है इसका। गिट स्टेटस ये देखो, चेंजेस टू बी कमिटेड, न्यू फाइल डेमो डॉट टीएक्सटी। तो अब ये कहाँ आ गई, ये वर्किंग एरिया से स्टेजिंग एरिया आ गई। अब यहाँ पे आ गई है डेमो डॉट टीएक्सटी। तो हमें इसको कमिट भी करना है। तो कमिट करने के लिए हम कमिट कमांड यूज करेंगे, बट उसके पहले अ, हम्म, हमको एक कमिट करना है, तो गिट कमिट कमांड है, इसमें हमने देखा मैसेज हमको देना पड़ता है कमिट करने के बाद। तो हम बोल सकते एक न्यू फाइल क्रिएटेड। ये देखो आउटपुट में क्या है, मास्टर रूट कमिट, न्यू फाइल क्रिएटेड, वन फाइल चेंज, वन इंसर्शन, क्रिएट मोड 100 644 डेमो डॉट टीएक्सटी। ओके, तो हम गिट स्टेटस देखेंगे, गिट स्टेटस वन ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन।
अब पहले क्या आता था, जब हमने गिट स्टेटस चलाया था तो आया था कि ऑन ब्रांचिंग मास्टर नो कमिट से चेंजेस भी कमिटेड, न्यू फाइल डेमो डॉट टी। अब ये फाइल कहाँ आ गई, कमिटेड फाइल्स में आ गई, जो कि हमने बनाई है डेमो डॉट टी। ये इसका फ्लो है। तो नेक्स्ट कमांड हमने देखी गिट लॉग। इसमें हिस्ट्री चेक कर सकते हैं हम, इसने क्या, ऑथर कौन है, ज्ञानेश्वर मडके है, ओके, डेट ट्यूसडे दिसंबर, और न्यू फाइल क्रिएटेड, ओके। आपको फाइल डिलीट करनी है तो आप यूज गिट रिमूव करके भी कमांड है, रिमूव आर एम डेमो डॉट टी एक्स टी, देखते हैं होती है क्या। यस, आर एम डेमो डॉट टी एक्स टी। हम देखेंगे लेस करके है क्या, इसमें नहीं है, डिलीट हो गई है। बट हमें ये फाइल रिस्टोर करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमने कमांड नहीं सीखी है। तो ये कमांड बेसिकली कमांड क्या है, ये कमांड है गिट रिस्टोर डेमो डॉट टी एक्स टी, ये कमांड है। बट ये कमांड हम हैंड्स ऑन करके देखेंगे, गिट रिस्टोर डेमो डॉट टी एक्स टी। बट ये नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज द पाथ स्पेसिफिक डेमो डॉट टी एक्स टी डिड नॉट मैच एनी फाइल नोन टू गिट। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, गिट स्टेटस करेंगे हम, गिट स्टेटस, ये देखो गिट रिस्टोर कौन से स्टेज में है, डैश डैश स्टेज। तो हमें कमांड क्या लिखनी पड़ेगी, रिस्टोर गिट रिस्टोर स्टेज स्टेज डेमो टू डॉट टी एक्स टी। डेमो टू नहीं है हमारी, ओनली डेमो डॉट टी एक्स टी, ओके। अब ये रिस्टोर होगी, ये देखो, ये लेस करके इधर, इसमें तो नहीं दिखेगी, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको गिट स्टेटस करना पड़ेगा, गिट स्टेटस। देखो डिलीटेड डेमो डॉट टीएक्सटी, नो चेंजेस एडेड टू कमिट, यूज गिट ऐड। तो हम इसके लिए हमें क्या करना है, ऐड कमांड यूज करना पड़ेगा, गिट ऐड डेमो डॉट टीएक्सटी। ये देखो अब दिखेगी शायद, गिट स्टेटस, ये देखो, यूज गिट रिस्टोर स्टेज देन डिलीटेड डेमो डॉट टीएक्सटी टू ऑन स्टेज। तो ऑन स्टेज करने के लिए फिर से गिट गिट रिस्टोर स्टेज डेमो डॉट टीएक्सटी। अब शायद गिट स्टेटस करके दिखनी चाहिए, नो चेंजेस added to commit, use git add and or git commit a to update while will be committed। इसमें git status, sorry, wrong command, I entered status, use git add remove file to update what will be the committed, git add तो किया है हमने, .txt और git add। तो हमने ये कमांड्स देखी, ओके, बेसिक कमांड्स है जो हमने इस वीडियो में देखी है। तो फॉर रीडिंग के बाहर आता हूँ, आपको मैं बेसिक
कुछ कमांड्स बताऊंगा जो इंटरव्यू में पूछते हैं। तो आपको पूछते हैं कि आपको एनवायरमेंट which to check which OS environment is built on any repository or any you have to आप मल्टीपल एनवायरमेंट में काम करते हो तो आपको पूछते हैं आप मोस्टली कौन से एनवायरमेंट कैसे चेक कर सकते हो आप। तो आपको यूजिंग द कैट स्लैश etc स्लैश OS देन रिलीज। देखो यूजिंग दिस कमांड आपको सब पता चलता है कौन सा OS इंस्टॉल है इसमें, उबंटू है, नेम उबंटू, वर्जन, आईडी क्या है इसकी, और सब डिटेल्स जो आपको चाहिए वो यूजिंग दिस कमांड आप दे सकते हो, कैट स्लैश etc स्लैश OS रिलीज। वो आपको कुछ चेक कर्नल वर्जन चेक कर्नल इंफॉर्मेशन वर्जन चेक करना होता है तो आप ये भी कमांड यूज कर सकते हो, यू नेम ए करके। तो आपको कर्नल की इंफॉर्मेशन शो होती है इसमें। देन नेक्स्ट कमांड आपको सीपीयू आर्किटेक्चर चेक करना है कौन से सिस्टम का, तो सिंपल कमांड है आर्क, वो भी चला सकते हो आप क्योंकि ये देखो ये सीपीयू आर्किटेक्चर है। तो ये सब कमांड्स हैं जो आज हमने देखे हैं। तो गिट कॉन्फ्लिक्ट्स तो हमने पढ़ा है और आज हमने सब कवर किया है गिट के बेसिक्स। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में लिखना ना भूलें गिट बेसिक्स क्लियर। तो थैंक यू बाय।